Hello everyone, I am Shambhuvi from Progressive Science Education and today I am going to start another new and very interesting chapter of class 8, that is chapter number 3, synthetic fibers and plastic. So let's get started from its introduction. The clothes we wear are made up of fabrics. एज यू ऑल नो, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो क्लोथ्स पहनते हैं, वो अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं. ऑल फैब्रिक्स आर मटेरियल मेड फ्रॉम मेनी फाइबर्स. Fibers may be either natural or synthesized artificially. Okay, fibers are also used to make other household materials like curtains, mats, ropes, carpets, etc. In your previous classes, you have learnt about natural fibers such as cotton, wool, silk, jute, etc. For many years, wool and cotton have been the only source of fiber to make fabrics and other household items, as you all know. In early 1900, the first synthetic fiber was made. As you all know, in early 1900, the first synthetic fiber was made. Do you know that rayon was the first man-made fiber that was synthesized from wood pulp? Since then, synthetic fibers have become an integral material of our daily life. So, in this chapter, we shall discuss about synthetic clothing material, plastics and their usefulness and problems associated with their excessive use. So, firstly, we discuss about the topics. So, topics to be covered: synthetic fibers, type of synthetic fibers, characteristics of synthetic fibers, plastic and problem associated with excessive use of plastics, different type of plastic as material of choice, plastic and the environment, some preventing measures, key terms and some question and answer that I will discuss in next video. So let's get started from our first topic, that is synthetic fiber. So you know what is synthetic fiber? All the synthetic fiber are man-made fibers that was prepared by a number of processes using a raw material of petroleum origin called petrochemical. Learn this definition, that all the synthetic fiber are man-made fibers that was prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals. A synthetic fiber comprises some small units of chemical joined together in form of chains. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. Polymers are both man-made or synthetic and naturally occurring. For example, cotton is a natural polymer called cellulose, which is made up of a large number of glucose units, while polyester is a synthetic polymer comprised of ester chain. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सिंथेटिक फाइबर से आपने क्या क्या देखा. सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो एक मैन मेड फाइबर होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल की नंबर ऑफ प्रोसेसेस से बना होता है. एज यू नो पेट्रोलियम ओरिजिन, जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल कहते हैं, एज आई टोल्ड यू. सो सिंथेटिक फाइबर जो होता है बहुत ही स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल्स से ज्वाइन करके बनता है, एक चेन बनाता है. ओके और वही सारी यूनिट्स जो होती है वो कंबाइन करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर. आपको वो वर्ड पॉलीमर से ही समझ में आ गया होगा कि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मीन्स होता है पार्ट और यूनिट. ओके, so the word polymer is derived from a Greek word poly means many and mer means part or unit. A polymer is made up of many repeating units called monomers. कई सारी repeating units से बना होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर. As you all know, मोनो का मतलब होता है सिंगल. Okay, the process which turns monomers into polymer is called polymerization. Okay, so first दे ड्राई क्विकली. ये सब मैं करेक्टरिस्टिक्स अब बताने जा रही हूँ कि क्या क्या सिंथेटिक फाइबर की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं अच्छी होती हैं, बट कुछ सिंथेटिक फाइबर की ज़्यादा यूज़ से बैड इफेक्ट भी शो करती हैं. सो फर्स्ट इज दे ड्राई क्विकली, दे आर वेरी ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे आर ईजी टू मेंटेन, दे आर रेडली अवेलेबल. नाउ टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब हम लोग ने सिंथेटिक फाइबर में देख लिया कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैन मेड फाइबर होता है जो कई सारे रॉ मटेरियल की कई नंबर ऑफ प्रोसेस से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स.
अब नाउ हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं. ओके, तो फर्स्ट टाइप इज रियॉन. Rayon is most widely used fiber. It has a silky texture. Therefore, rayon is also termed as artificial silk. Rayon is made by chemically treating cellulose obtained from wood pulp. It can be mixed with a cotton or wool to make a bed sheets, curtains or other unfossil litter. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, आपने रियॉन थ्रेड देखे होंगे. ये सिल्क की तरह होता है, इसीलिए हम लोग इसे आर्टिफिशियली सिल्क भी कहते हैं. रियॉन जो होता है वो केमिकली ट्रीटिंग सेलुलोज से बना होता है जो कि हमें वुड पल्प से मिलता है. नाउ अब हम लोग कुछ ऐसे यूजेस रियॉन के बारे में देखेंगे जो रियॉन से मतलब हमें अच्छे, हमारे लिए अच्छे होते हैं. जो यूजेस मतलब उससे क्या क्या फ़ायदे, ओके, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं. तो फर्स्ट यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ दैट इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज यू ऑल नो फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स एंड होम फर्निशिंग. नाउ it is used in the manufacture of carpets also, as you see at your home also. It is used for making bandages and surgical products also. Okay, now our next part is nylon. That is our next type of synthetic fiber is nylon. So what is nylon? Nylon was the first fully synthetic fiber made from a chemical containing carbon, oxygen, nitrogen and hydrogen elements. जैसे अभी आप लोग ने रियॉन में देखा था, वो सिल्क का टेक्सचर होता है उसमें, इसीलिए हम लोग उसको आर्टिफिशियली सिल्क भी कहते हैं, जो कि केमिकली ट्रीटिंग सेलुलोज से बना होता है जो कि हमें वुड पल्प से मिलता है. और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जो रियॉन है वो एक नेचुरल सोर्स है वुड पल्प का, लेकिन इसको हम लोग मैन मेड फाइबर कहते हैं. ओके, नाउ अब आपने नायलॉन क्या देखा कि नायलॉन एक फुली सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट से बना हुआ है. नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, इसकी जो इलास्टिक होती है बहुत ही मजबूत होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, they can be drawn into thin fibers also. Okay, इसको हम लोग एक thin fibers में भी convert कर सकते हैं. Nylon does not absorb water and is wrinkle resistant. It dries quickly and easy to wash. It does not shrink and retain its shape and appearance. अब जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि नायलॉन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है. अब वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वो जल्दी से सूख भी जाता है और जल्दी से धुल भी जाता है. एज यू ऑल नो कि वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जल्दी से सूख तो जाएगा ही, क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर नहीं रहा है. एंड इट डज नॉट श्रिंक एंड रिटेन इट्स शेप एंड अपीयरेंस. वो श्रिंक या वो मतलब फैलता नहीं है और ना ही सिकुड़ता है, वो अपने शेप और अपीयरेंस को श्रिंक नहीं करता है. नाउ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर इज पॉलिस्टर. So firstly I wanted to know that what are the uses of nylon. जैसे कि मैंने रियॉन के यूजेस बताए थे कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बना हुआ होता है फैब्रिक से, एंड होम फर्निशिंग मतलब कि कई सारे फैब्रिक्स को बनाने के लिए यूज़ होता है और होम फर्निशिंग को बनाने के लिए यूज़ होता है, और भी कई टाइप्स मैंने आपको बताए थे. अब मैं आपको नायलॉन के यूजेस बताऊँगी, उसके बाद हम लोग पॉलिस्टर स्टार्ट करेंगे. So uses of nylon, it is used for the manufacture of tire cords, fabrics and ropes. It is used for making fishing nets and parachutes and rope for climbing. It is used for fabricating sheets, bristles or brushes. It is used for making saris, socks, neckties. Now it is used for making elastic hosiery, and it is used for making machine part. I hope you all understand what are the uses of nylon. You have to learn all the uses of all types of synthetic fibers. So come to our third type of synthetic fiber, that is polyester. So polyester is one of the most popular man-made fiber which is derived from coal, water, air and petroleum. It is made from repeating unit of chemical called ester.
अब जैसे कि आपने बाकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि वो किस किस की रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, वैसे ही पॉलिस्टर जो होता है वो कौन से केमिकल की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है? ईस्टर. ओके. Trilene is one of the famous type of polyester which can be drawn into very thin fibers. Trilene जो है, Trilene जो वो बहुत ही फेमस टाइप है पॉलिस्टर का, जो कि बहुत ही फाइन फाइब्रस में ड्रॉन किया जाता है. ओके. मतलब बहुत ही फेमस फाइबर है, बहुत ही फेमस पॉलिस्टर है. नाउ PET, polyethylene terephthalate, इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर. ये उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है. ओके. PET, यू हैव टू लर्न इट. नाउ अवर फोर्थ इज acrylic. Fourth type of synthetic fiber is acrylic. Now firstly I wanted to know you that what are the uses of polyester. So uses of polyester are, polyester is used in making different types of apparel, as you all know, such as shirts, pants, jackets, bed sheets, curtains, sarees, mouse pad, etc. Polyester is used in making ropes, fabrics for conveyor belt, cushioning and insulating material in pillows, etc. It is used in fleece jackets, raincoats, medical textiles, etc. As you have all listened about it also. Okay. So terracotta is blended fabric made after mixing of trilene and cotton, polycot, polywool, etc. Are other fabrics which are made by the making of polyester with other natural fibers. Fabrics made from polyester fibers are almost wrinkle free, easy to wash and have a shiny appearance. It is the polyester which made the fabric cheaper in India as well as in the whole world. So as I told you about PET, polystyrene terephthalate, is very popular form of polyester. Water bottles and many other containers used in kitchen, films, wires and many other useful products are made using PET polyester. Okay. Now come to the next type of synthetic fiber, that is acrylic. I tell you again that you have to learn all the uses of all type of synthetic fiber. So our next topic is our next type of synthetic fiber is acrylic. Acrylic is the synthetic fiber that resembles wool, so it is also known as artificial wool or synthetic wool. जो एक्रिलिक होता है वो एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि वूल को रिजेंबल करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल वूल और सिंथेटिक वूल. एक्रिलिक जो है बहुत ही चीपर होता है नेचुरल वूल के नेचुरल वूल के कंपेयर में, एंड कैन बी डाइड इन वेरियस कलर. इसको कई सारे कलर में इसको डाइड किया जाता है. फैब्रिक्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर वार्म टू वियर. ये गर्म होता है पहनने के लिए, इसलिए हम लोग एक्रिलिक जो क्लोथ्स होते हैं वो गर्मियों में नहीं पहनते, ठंडियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं. रिटेन देयर शेप्स एंड आर ड्यूरेबल. Thus acrylic has become a very popular and gradually taking the place of wool today. Okay. Now the uses of acrylic are, acrylic is used in making sweaters, chalks, home furnishing, blankets and many other clothings. Industrial uses of acrylic include craft yarn, ironing, बोट एंड व्हीकल्स कवर. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक्रिलिक को स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉक्स को बनाने के लिए, होम फर्निशिंग के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए और क्राफ्ट यार्न के लिए, आयरनिंग के लिए, बोट के लिए और व्हीकल कवर के लिए. ओके. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. अब आप लोग ने सिंथेटिक फाइबर में के बारे में देखा, उसके जितने टाइप्स हैं उनके बारे में और जितने टाइप्स की यूज़र्स के बारे में. अब आप लोग देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर. सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर. Synthetic fiber are more durable than natural fiber. It is easy to maintain the synthetic fiber. Synthetic fiber are dyed up in less time. Synthetic fiber are readily available, but synthetic fiber have some disadvantages too. अभी तक जितने भी मैंने यूजेस आपको बताए, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स बताई, दीज ऑल एंड जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई वो सब एडवांटेजेस थी.
कि सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेज होते हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जिसके बारे में आप लोग देखेंगे। दे डू नॉट वेट ईजली, वो सूखता तो बड़ी जल्दी से है और फैलता भी नहीं है, पर वो गीला जल्दी नहीं होता। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम स्किन, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए हमारे शरीर के स्वेट को भी वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिससे गर्मी में हम लोग को ऐसे क्लोथ्स पहनने में प्रॉब्लम होती है। क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर अनकम्फर्टेबल टू वियर, ये कम्फर्ट नहीं होता हम लोग के लिए पहनने के लिए। दे डू नॉट अलाउ द स्किन टू ब्रीथ कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। नाउ they are prone to heat damage and melt easily. They can catch fire easily and cause fatal burn injuries. As you all know कि सिंथेटिक फाइबर को पहन के हम लोग को कभी भी आग के पास नहीं जाना चाहिए। So क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये आग को बहुत ही जल्दी कैच करता है। It catches fire very easily. Now, I hope you all understand the characteristic of synthetic fiber and you can also check it by doing some activities. आप इसे कुछ activities को follow करके भी कर सकते हैं। मैं आपको एक activity बताती हूँ, जैसे कि material required strip, एक आप स्ट्रिप लेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होगी ऑफ वेरियस क्लोथिंग मटेरियल, मतलब कई जितने भी टाइप्स बताएं उन सब के एक एक स्ट्रिप लेंगे, उन सब क्लोथ्स की एक एक स्ट्रिप लेंगे। जैसे कि आप रेयॉन की एक स्ट्रिप लेंगे, एक नायलॉन की लेंगे, एक पॉलिस्टर की लेंगे, एक एक्रिलिक की लेंगे। ओके, 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। Now procedure: clamp the strip of various clothing material on a knitting needle with the help of clips. The lower end of all the strip should be at the same level. आप इसे एक बाउल में मतलब बाउल के ऊपर एक आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसी पे हैंगर पे जैसे आप टांगते हैं ना कपड़ा, वैसे ही आप इस चारों स्ट्रिप को क्लिप जो होती है क्लोथ्स की क्लिप जो होती है जिससे हम लोग कपड़े को स्टिर करते हैं, उस क्लिप से उस सारे मतलब चारों स्ट्रिप को आप स्टिर कर लेंगे। उसके बाद एट द सेम लेवल, सबको सेम लेवल पे प्लेस अ ट्रे अंडर दिस स्टिरिप, अब इन सब स्टिरिप के नीचे एक ट्रे रखेंगे। सपोर्ट द निटिंग नीडल ऑन द ब्लॉक सो दैट द लोअर एंड ऑफ द स्टिरिप एट जस्ट अबव द बॉटम ऑफ द ट्रे। Pour colored water in the tray so that the lower end of the strip just dip into it, कि नीचे का जो एंड है मतलब स्ट्रिप का लोअर एंड जो है वो बस डिप हो जाए उस ट्रे में। After about 20 to 30 minutes, observe the level of the blue colored water on each strip. Measure the height of colored water for all the strip. Now, अब आप लोग क्या करेंगे, 20 to 30 मिनट्स के बाद आप ब्लू कलर को की लेवल को देखेंगे, जो वाटर में आपने स्टिरिप डाली थी ना उसकी लेवल को आप देखेंगे और मेज़र करेंगे उसकी हाइट को ऑफ द कलर्ड वाटर फॉर ऑल दी स्टिरिप। नाउ ऑब्जर्वेशन: रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दी फॉलोइंग टेबल। अब आप एक टेबल ले लीजिए, मैंने मतलब एक टेबल बनाइए, उसमें आप सारे स्टिरिप की जो ऑब्जर्वेशन आपने की उसको लिख लीजिए। ओके, जैसे जो जो टाइप्स के क्लॉथ्स आपने लिए, मान लिया कॉटन लिए, वूल लिए, नायलॉन लिए, पॉलिस्टर, सिल्क, जो भी टाइप्स ऑफ क्लॉथ लिए आपने, उसकी हाइट ऑफ कलर्ड वाटर को लिख लीजिए। ना कंक्लूजन: फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म वी सी कॉटन एंड वूल एब्जॉर्ब वाटर मोर ईजली। आपने जो ये मतलब एक्टिविटी की, आप जितने भी स्टिरिप रख सकते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ क्लोथ के रख सकते हैं, आप उसमें कंक्लूजन क्या देखेंगे कि जो कॉटन और वूल है वो बहुत ही ईजली जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। पॉलिस्टर एंड नायलॉन एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, और पॉलिस्टर और नायलॉन जो है वो बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे ही आप कई एक्टिविटी को कर सकते हैं ये देखने के लिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर चेक करने के लिए। ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ प्लास्टिक्स। ओके, सो we are probably passing through the plastic age, as you all know that today we are using so much plastics। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं इस समय में, फ़िलहाल के लिए मतलब मॉडर्न एज में। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अ प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटीरियल विच कैन बी ईजली मोल्डेड इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप ऑन हीटिंग। एज यू ऑल नो कि प्लास्टिक को आप हीट करके उसका कोई भी शेप बना सकते हैं, मतलब उसके शेप को बदल सकते हैं। Plastics are actually synthetic man-made polyester like synthetic fiber.
प्लास्टिक जो है वो एक सिंथेटिक मैन मेड पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स। These are polymer of long carbon chains arranged either linearly or cross-linked. उसका फिगर मैं आपको अभी दिखाऊंगी. Polythene is one of the most popular type of plastic which is used in the manufacturing of carry bags. So see these pictures, arrangement of smaller molecules in linear polymer and arrangement of smaller molecules in cross-linked polymer. Okay? Now सम कॉमन प्लास्टिक्स। अब आप कुछ कॉमन प्लास्टिक के बारे में देखिए कि क्या क्या प्लास्टिक्स होते हैं। ब्रेकलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीथिलाइन, ट्राफलेट, ट्रेलाइन एंड मैनी मोर। और भी कई सारे प्लास्टिक होते हैं बट कॉमन आर 6। ओके, एज आई टोल्ड यू, ब्रेकलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन, ट्रेलाइन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथाइन ट्राफलेट, दैट इज PET। नाउ प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आपने देखिए, अब मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि आपने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक आपने पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद आपने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखा, आपने सिंथेटिक फाइबर के जितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में देखा। जो 4 टाइप्स मैंने आपको बताए वो सब टाइप्स तो हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, बट ज़रूरी नहीं कि खाली वही क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स कई टाइप के होते हैं। ओके, सो आपने टाइप्स के बारे में देखा, उनके यूजेस के बारे में देखा, उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा सिंथेटिक फाइबर की, फिर आपने एक एक्टिविटी को भी चेक किया। अब आप लोग एक नई टॉपिक पे आए, दैट इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक को आपने जाना कि कैसे हम मॉडर्न एज में प्लास्टिक का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सबसे फेमस प्लास्टिक जो है वो पॉलीथीन है, और हम लोग प्लास्टिक का शेप बदल सकते हैं अगर उसे हीट करके। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। So thermoplastic, a plastic which can be easily bent or softened on heating and molded rapidly in the desired shape is called thermoplastic. जो बहुत ही easily bent हो जाए और जो सॉफ्ट हो और हीट करने पे वो अपना शेप रैपिडली, तुरंत का तुरंत अपने शेप को चेंज कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। एज यू ऑल नो दैट PVC, नायलॉन, polythene etc. These all can change its shape. Are some common thermoplastic as I told you. Thermoplastic जो होते हैं वो टॉयज़ के मेकिंग के लिए, बॉटल्स के मेकिंग के लिए, कॉम्ब के मेकिंग के लिए एंड कंटेनर्स, पाइप के लिए अच्छे होते हैं। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब इसका जस्ट अपोजिट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जैसे थर्मोप्लास्टिक होता है वो सॉफ्ट होता है, बेंड हो जाता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक can't change its shape. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं और वो सॉफ्ट भी नहीं होते हैं, उसे आप हीट करने पे वो तुरंत अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। नाउ what are the differences between thermosetting plastics? You have to know about it. Okay, differences is important. So thermosetting plastic और thermoplastic के क्या क्या differences होते हैं? Thermosetting plastic जो are the polymer in which chain get highly cross-linked on heating, and thermoplastics are long chain polymer with no cross-linking. Heating also does not produce any cross-linking between the chains. Now once molded thermosetting plastic cannot be reproduced. Example, bakelite and melamine. Thermoplastics can be proceed rapidly. Example, polythene, PVC, polystyrene, nylon, polyester. आई होप यू अंडरस्टैंड कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है बहुत ही ईजिली बेंट हो जाता है और वो अपने शेप को रैपिडली हीटिंग करने से चेंज हो जाता है, उसका शेप, डिज़ायर्ड शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? वो एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो एक बार विच वंस मोल्डेड इनटू अ शेप कैन नॉट बी सॉफ्टेन। उसको अगर आप एक शेप में चेंज कर दो, मतलब एक बार आपने मोल्ड उसको एक शेप प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद वो सॉफ्टेन नहीं रह जाता है, वो मेल्ट नहीं हो पाता है रीहीटिंग करने पर भी। ओके, नाउ प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। नाउ अब आपने सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, अब आप लोग एक नए टॉपिक में आए हैं, दैट इज़ प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। सो अब आप लोग प्लास्टिक की कुछ अच्छी बातें और कुछ जो प्लास्टिक से हमें नुकसान है उसके बारे में देखेंगे।
कि प्लास्टिक जो होता है पुअर कंडक्टर होता है. As you all know, plastic is a poor conductor of heat and electricity. This make it suitable to make the covering of electric wires, handles of electrical appliances, handles of utensils, kitchenwares, floor tiles, etc. As you all know कि जो प्लास्टिक होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम लोग जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं और व्हीकल्स के हैंडल जो होते हैं और वायर्स के ऊपर कवरिंग जो हम लोग करते हैं वो सब प्लास्टिक की हेल्प से करते हैं, जिससे अगर हम वायर को छू रहे हैं तो हमें करंट ना लगे. अगर हम किसी भी कोई यूटेंसिल्स गर्म है अगर हम उसको उठाएं तो हमारे हाथ में मतलब हम जले ना, इसीलिए उसके हैंडल को प्लास्टिक से बनाया जाता है. अब हम लोग देखेंगे कि प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर एंड विद मेनी ऑफ केमिकल. इट डज नॉट गेट रस्ट लाइक आयरन. प्लास्टिक जो होता है उसको कोई भी रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता है, जैसे कि आयरन जो होता है वो रस्टेड हो जाता है, उसमें जंग लग जाती है, बट प्लास्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. एयर और वाटर उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते. This characteristic make plastic suitable for making containers, water tanks, water bottles, plastic pipes, taps, chair, tables, etc. Now, plastic is a light, strong and durable. Plastic जो होता है वो light होता है, strong होता है और durable होता है. Plastic are lightweight, durable, cheap and very strong. These qualities of plastic make it neat today, whether it is a polythene bag or a pencil box, water bottles, umbrellas, furnitures or aircrafts. The uses of plastic can be seen everywhere. जो प्लास्टिक होता है वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, चीप होता है, ड्यूरेबल होता है, जिससे प्लास्टिक का यूज़ धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. जैसे कि आप कई सारी चीज़ें अपने होम पे देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो प्लास्टिक से बनी होती हैं. जैसे कि आप पेंसिल बॉक्स देखते होंगे, अपने अम्ब्रेलास को देखते होंगे और वाटर बॉटल्स को देखते होंगे. वो सब जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब प्लास्टिक से ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट. अब हम लोग ने प्लास्टिक की अच्छी बातें देख ली कि प्लास्टिक से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है. अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिक से हमें नुकसान क्या होता है. वी नो दैट सम सब्सटेंसेज दैट गेट डिकम्पोज्ड. सो फर्स्टली आई वांटेड टू नो यू दैट कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो अर्थ के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी के भी रिएक्शन से डिकम्पोज नहीं होते, वो किसी के भी दबाव से डिकम्पोज नहीं होते हैं. दैट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. यही इसका नुकसान है जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है एनवायरनमेंट, क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. So we know that some substances that get decomposed through the natural processes such as air, water and the action of microorganisms etc. are called biodegradable substances. जो मतलब एयर, वाटर और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. लेकिन जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. ओके. सो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक. अब आपने देखा कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट में आपने बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में देखा, जिसमें हमें ये पता चला कि प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लास्टिक के ज़्यादा यूजेस से. So plastic has become very popular and is being used for many purposes. As a result, we are generating a large amount of plastic waste. Since plastic is non-biodegradable, this waste gets accumulated around us. It undergoes a process known as degradation, in which it breaks down into a smaller and smaller toxic particles over a long period of time, about 50 years or more. These particles contaminate soil and water and end up entering the food chain. When eaten accidentally, they can choke the cattle to death. Hundreds or the thousands of animals die every year. अब हम लोग को प्लास्टिक से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके बारे में आप लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है. और जब मिलियन ईयर्स के बाद, मतलब 100 to 1000 ईयर के बाद, जब वो स्मॉलर पीसेस में
मतलब सेपरेट हो जाता है, स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है लॉन्ग पीरियड बाद, मतलब आफ्टर 50 to 100 ईयर्स तक जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका, तब वो जो था वो सॉइल और वाटर में मिक्सअप हो जाता है, मतलब उसमें सॉइल और वाटर में आ जाता है, जिससे कोई भी एनिमल जैसे काऊ और कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उसको मतलब जब खाते हैं अपना खाना, तो उससे क्या होता है कि वो सारी जो पॉलीथीन चीज़ें होती हैं, जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर चली जाती हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ वेरी 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 प्रॉब्लम, दैट इज़ वेरी वेरी बैड प्रॉब्लम, एज यू नो कि बहुत ही बुरी दिक्कत होती है इससे, जिससे बहुत ही प्रॉब्लम होती है हम लोग को प्लास्टिक यूज़ करने से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि मॉडर्न एज में प्लास्टिक का यूज़ बैन तो भले ही हमारी गवर्नमेंट में करा दिया गया था, लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो जितने भी फ़ायदे हैं प्लास्टिक के, वो सब फ़ायदे तो हैं ही, पर इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सो सम प्रिवेंटिव मेजर्स। अब आप लोग को प्लास्टिक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? रिफ्यूज़ से नो टू प्लास्टिक्स। आप ज़्यादातर जो मतलब अपने बैग्स यूज़ करते हैं वो कोई और चीज़ का, कागज़ का बैग यूज़ कीजिए और किसी चीज़ का बैग यूज़ कीजिए, बट प्लास्टिक का मत यूज़ कीजिए। सो रिफ्यूज़ मीन्स से नो टू प्लास्टिक्स। रिड्यूस योर प्लास्टिक फुटप्रिंट्स एंटायरली बाय अवॉइडिंग प्लास्टिक्स। आप प्लास्टिक को मतलब ख़त्म करिए। आपके पास जो प्लास्टिक है मान लिया है, पर आप उसे रोक दीजिए, उसकी बढ़ती हुई रफ्तार को रोक दीजिए, अवॉइड करके, प्लास्टिक को अवॉइड करके उसको रिड्यूस कर दीजिए। रीयूज़, अगर आपके पास प्लास्टिक्स हैं तो मतलब आप जितने भी गुड्स लाते हो प्लास्टिक्स में अगर आप लाते हो तो आप उसे रीयूज़ करिए, मतलब उसे आप फेंक मत दीजिए, आप उसे रीयूज़ करते जाइए। कि इंडस्ट्री में मतलब रीयूज़ किया जाता है, वो सारे चीज़ों से नई चीज़ें बनाई जाती है, तो वहाँ आप दे दीजिए। सो रीयूज़ करिए जितने भी प्लास्टिक्स के गुड्स हैं। रिसाइकिल द वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, रिड्यूस्ड और रीयूज्ड। आप उसे उस वेस्ट को रिसाइकिल कर दीजिए जो कि वेस्ट मतलब जो कि रिफ्यूज़ नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता और रीयूज़ नहीं हो सकता। देखिए, रिफ्यूज़ में आपको प्लास्टिक को नो कहना है, रिड्यूस में आपको प्लास्टिक की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकना है, और रीयूज़ में आपको उस चीज़ को बार बार यूज़ करना है, और रिसाइकिल में उस चीज़ को रिसाइकिल करके एक नया थिंग बनाना है। जब आप रीयूज़ उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे, आप उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे और यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आप उसे रिसाइकिल कर दीजिए। नाउ the end. I hope you understand this chapter. This chapter is very interesting as you all understand about all the topics as I told you. So if you all have any doubts regarding any questions, so please tell me in comment section. And if you all like my video, so please like, share, subscribe and please press the bell icon. So in next video I will give you some important key terms and question and answers. So tab tak ke liye bye bye and take care.